اگر یسوع مسیح نے ہمیں وہ راست بازی کو پورا ہوتے ہوئے خود اس پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے تو پھر ہمیں بھی پورا کرنا ہے. جب تک ہم توبہ کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے، بپتسمہ لینے کے بعد یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے، نئی کمٹمنٹ کے ساتھ خدا کے ساتھ سامنے نہیں آتے، تب تک ہماری زندگی میں ریوائول نہیں آئے گا، تب تک بحالی نہیں آئے گی، تب تک آپ سٹینڈ نہیں ہو پائیں گے، تب تک اچھے مسیحی، اچھے روحانی انسان نہیں بن سکیں گے اور اس کے بیٹے اور بیٹے نہیں ٹھہر سکیں گے. آمین. کیونکہ ہم نے عہد نہیں کیا. اور آج دنیاوی باتوں کے کو بھی سامنے دیکھیں. ہم ایک گھر خریدتے ہیں نا تو پھر وہاں پر جو اسائنمنٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ کی جاتی ہے، لکھت پڑھ دیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں لکھت پڑھ دی نا، اسٹام کرانے ہیں. لو جی آج تو بعد ہے گھر کا مالک میں ہاں، میں کیونکہ تینوں پیسے دیتے ہیں، تیرا اس گھر سے کوئی حق نہیں تاکہ دوبارہ وہ شخص آ کے ساتھ کچھ کہہ نہ سکے. ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ کمٹمنٹ لیتے ہیں. تو وہ کمٹمنٹ جب ہمارے پاس وہ کاغذات ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہوں وہ گھر ہمارا ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو کمٹمنٹ ضروری ہے، کاغذی کارروائی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اگر ہم بات زبانی طور پر کسی کو پیسے دے دیں تو کہ چل ٹھیک ہے تو واسطو میں چلے آؤں، تو مہینے بعد پھر آ کے گھر کا میرا اٹھ بات دیکھو تیرے کو کی ثبوت ہے. تو اگر ہم خدا کے پاس جائیں گے بغیر کمٹمنٹ کے، بغیر توبہ کے، تو خدا بھی کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ کوئی عہد نہیں باندھا، تیری میری کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. جڑے وعدے بائبل مقدس سے لکھے ہیں وہ اگر کمٹمنٹ ہے، اگر خدا نے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں بھی خدا کے ساتھ یہ ہاں کرنی پڑے گی. ہاں خداوند میں ترک کروں گا بدی کو، ہاں خداوند میں گناہ کو ترک کروں گا، ہاں خداوند میں تیرے آئین کو مانوں گا. جس طرح داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کیا خیال ہے؟ تو داؤد نے اگر کمٹمنٹ کی ہے تو دیکھیں اس کی زندگی میں کتنی خوشحالی تھی، کتنی برکات تھی، کتنی زندگی میں برکتیں تھیں، کتنی فتوحات ہیں اس کی، کتنا خدا نے اسے نوازا ہے. اور پھر اسے یہ بھی کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. تو پھر کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. بپتسمہ لے لینا، توبہ کر لینا، منہ سے زبانی اقرار کر لینا ایک دفعہ، یا ڈبکی لگا لینا بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی گواہی دیتا ہوں. مجھے نا جب میں خدا میں تھے تو ہم مسیح گرانے کے تعلق رکھتے تھے، بائبل بھی پڑھتے تھے، دعاؤں میں جاتے تھے، لیکن کمٹمنٹ نہیں تھی خدا کے ساتھ. تو جب اویئرنیس ملی، جب میرے بھائی، چھوٹے بھائی پرویز صاحب جو ہیں، پاسٹر پرویز صاحب، وہ خدا میں آئے، انہوں نے سیمنری کی، تو میرے بچوں نے بھی توبہ کر لی تھی لیکن میں نے نہیں کی تھی. دیکھیں کیسی بات ہے. وہ میرے بچے مجھے کہتے مجھے کہتے پاپا تسی بپتسمہ نہیں لیتے، تم توبہ نہیں کرتے پے. میں پان کھاتا تھا، مجھے عادت تھی کیونکہ جہاں پر میں کام کرتا تھا وہاں پر سب ہی ایسے لوگ تھے. تو مجھے بھی عادت پڑ گئی. میں کہا میرے کو پان نہیں چھٹے جانے. تو نہیں تسی پاپا جی کرو، اچھا نہیں لگتا، دیکھو گھر دعا ہوتی سارے، تو تسی چلو جی. میں نے بھی ایک دن عہد باندھا خدا، 2007 کی بات ہے یہ. میں نے کہا پاسٹر پرویز صاحب اور ہمارے پاس پاسٹر ایک اور آتے تھے، نہیں مطلب صاحب نہیں تھے، اقبال صاحب تھے، پاسٹر اقبال صاحب تھے. انہوں نے بپتسمہ دے جانا تھا کانے والے صوبے میں. تو انہوں نے مجھے کہا یار تو چل، بڑا مجھے فورس کیا پاسٹر صاحب نے. تو کہنے لگے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، میں بھی آج بپتسمہ چھوڑ دوں گا ساری زندگی قرآن کی. تو کیا ہوا، مجھے جاب سے چھٹی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا آنا ہے. میں نے کہا یار میں کام کر کے ہم چھٹی لے کے آ جاؤں گا. 12 بجے ہم وہاں پر ہم نے پہنچنا تھا. میں نے باس سے چھٹی لی. میں نے کہا مجھے کوئی ضروری کام ہے نکالنا. جب میں نکلنے لگا تو کیا کیا، گلبرگ میں ایف سی کالج میں نا پھپھو کا گھر تھا، تو وہاں پر ایک ٹیوشن جاب تھی میری. میں نے کہا چل یار آگے چھاڑو دینے نے پان، ایک پان ہے تو کھا لینا. میں شرماؤں گا نہیں اپنی بات کرنے پہ، کیونکہ میرے اندر جو برائی تھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جڑا آپ کی برائی میں چھپاتا ہے نا وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور جو اقرار کرے گا خدا کے اندر اس کے اوپر خدا کی برکت ہے جائے گی. تو میں نے کہا یار چلو آج چھاڑ کر دینے نے. تو ایف سی کالج بستی میں موٹر سائیکل کی تھی اور پھر پان لگایا، کھانا لگایا. رستے جا کے پھر میرا ذہن چینج ہوا. میں یار یہ کھانا دور وہ پان میرا اتنے آ کے ختم ہو گیا نشے تک. سیدھی گل کر رہا، گل کہا نہیں.
नश्तर में एक होर लवा लिया, मैं यार काने तक जाने ना, चलो ये भी खा लेंगे। नश्तर फिर पानी लो जी, काने गए, काने जो सुबह तो मुड़े थे नौका लगा उत्थे मकरोनी उत्थे गया चले लो जी, उत्थे गया उन्होंने मेरे हाँ जी बपस में हो रहे हैं, मैं मेरा वेट करते पास दो लोग रह गए, बपसमा लिया, तौबा की और ऐसी तौबा की जो हकीकत जिसको मैं जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये है कि ऐसी तौबा की थी कभी मैंने फिर मुड़ के उस तरफ नहीं देखा। जब मैं एक महीना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जब मैं किसी पान की दुकान से गुजरता था, मेरा दिल चाहता था, लेकिन मैं कहता था ये खुदा के साथ मेरी कमिटमेंट है, ये किसी इंसान के साथ नहीं है। वो मुझे इंसान तो देखेगा तो वो कहेगा यार तो तौबा की थी, लेकिन मैं छुट के भी खा सकता था। मैंने कहा नहीं, ये खुदा के साथ मेरी कमिटमेंट है, ये ऐद मेरा खुदा के साथ है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली खुदा से बात की है कि खुदा आज से मैं ये काम नहीं करूंगा और तू मुझे ये फजल दे कि मैं इस पर कायम रहूं। हालेलुया। उसने मुझे ये फजल दिया कि मैं उस कमिटमेंट पर पूरा करूं, कायम रहूं। फिर आज ये ऐसी कमीशन है कि जो ये काम करते हैं वो मुझे बुरे लगते हैं, हालांकि मैंने ये खुद काम किया, सिगरेट वगैरह, सिगरेट तो नहीं पीता, पान खाने। तो जब आप कमिटमेंट के साथ खुदा के साथ चलेंगे और उस पर पूरा उतरना शुरू करेंगे तो वो आपको ताकत देगा उस पर कायम रहने की, फजल देगा, वो हिम्मत देगा, इवन कि आप उस पर ऐद को पूरा करें। जब हम खुद ऐद पर पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा खुदा हमारी मदद करता है। क्या ख्याल है, करता कि नहीं करता? खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। तो यीशु मसीह ने इस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए क्या किया है? यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया और फिर उस पर कायम रहा। फिर क्या हुआ? उसी वक्त लिखा हुआ है रूह यीशु को जंगल बियाबान में ले गया ताकि उसकी आजमाइश हो। देखिए बपतिस्मा लेने के बाद उसको कौन ले गया है? लिखा रूह उसको जंगल में ले गया ताकि उसका टेस्ट हो, इम्तहान हो, पूरा होता है नहीं, उतरता है कि नहीं बंदा। तो लिखा हुआ पुलिस ने फिर उसे आजमाया, 40 दिन का फाका किया उसने। यीशु ने देखा कि मेरी आजमाइश है, उसने फाका किया, भरोसे में ठहर गया। उसने 40 दिन रात कुछ नहीं खाया। उसने कहा अगर मेरी आजमाइश है तो मैं इस पर पूरा उतरूंगा। फिर पुलिस कहता है तेरे लिए तो लिखा हुआ है तू इस ऊंची जगह से यानी कि छलांग लगा दे तो फिर तेरी राहों में हाथ करेंगे और तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। उसने कहा लिखा हुआ है अपने गुलाम बुला के आजमाइश ना कर। फिर उसने कहा तू 40 दिन से भूखा है तो क्या पत्थरों से रोटी बनते तो खुदा तेरी गाल मनेगा। कहना ये भी लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहता है। क्या ख्याल है? तो यीशु मसीह ने जब उस कमिटमेंट को पूरा किया तो उसके बाद मोजात शुरू हुए, मोजात ज़हूर पजीर हुए। उसके बाद झगड़े भी चलने लगे, उसके बाद कोढ़ी भी पाक साफ होने लगे, उसके बाद अंधे भी देखने लगे, उसके बाद अपाहज थे और जो भी उसके यीशु मसीह के पास आया शिफा पाता गया। और लिखा हुआ यीशु मसीह का बोलबाला, उसका जो शोहरत थी पूरे इस्राएल में और दूसरे मुल्कों में फैल गई। आमीन। तो ये थी उस कमिटमेंट पर पूरा उतरने का अहद, उसको पूरा करने का जो बरकत थी वो ये थी। तो आज देखें 8 बिलियन लोगों में से 8 अरब लोगों में से 5 अरब मसीह के पैरोकार हैं। यह है उस कमिटमेंट का रिजल्ट। क्या ख्याल है? यह है उस अहद को पूरा करने का रिजल्ट। अगर पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है या 8.5 अरब है तो उसमें 5 अरब मसीही हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। आमीन। अगर हम कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं, हम अहद को पूरा करते हैं, हम नई जिंदगी का जब आगाज करते हैं तो फिर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बरकत को लेके आता है। और मैं जब अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरा तो देखें परसों मेरा मैसेज था शाकर साहब की तरफ, आज आपकी तरफ है। कल रात मेरे पास पास्टर करामा साहब आए, उन्होंने भी मुझे दावत दी है कि हमारे चर्च में आप आएँ और कलाम सुनें। तो खुदा फिर आपको इस्तेमाल करेगा जगह पर जगह। खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने अंजील को, अपने काम को आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से लेगा और आपके वसीले से लोग बरकत पाएंगे। क्या ख्याल है? तो ज़िंदगी के अंदर अगर बपतिस्मे का नाम है रंगना तो ज़िंदगी के अंदर रंग तो नजर आए। क्या ख्याल है? नया को रंग तो नजर आए ज़िंदगी के अंदर। अगर ज़िंदगी में बपतिस्मे का मतलब है रंगना, कपड़े को रंगना
या किसी चीज़ को रंगना, तो फिर अगर हमने पुराना रंग उतारा है तो नया रंग चमका तो हमारे घर कोई नजर आवे कि क्या ख्याल है? नहीं, नया कलर जो है जिंदगी एक कैनवस है। कैनवस समझते हैं आप क्या है? आज सब कैनवस किसे कहते हैं? कोसे कज़ा क्या समझ पता है? कोसे कज़ा क्या होती है? जब बारिशें होती हैं तो जब बारिशें थम जाती हैं तो जमीन समान से पींग जी पै जाती है, देखा ना? उनके जो रंग कलर नजर आते हैं, मुख्तलिफ कलर नजर आते हैं, जिन्होंने कोसे कज़ा कहते हैं उर्दू से, इंग्लिश उन्होंने कैनवस कहते हैं, तो पंजाबी च कहते हैं आसमान से पींग पै गई। उनके बड़े रंग नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं, आने रंग बजुर्गों ने देखा है शायद किसी ने, आसमान से पींग जी पई होंगी ना तो बारिशां पै जांदियां ने, वो नूह नाल खुदा ने वादा किया है कि मैं तुहानू पानी के नाल नहीं मारांगा दोबारा तो जो बड़ा तूफान आया सी। तो फिर खुदा ने क्या कि जब बारिशें होती हैं, जब पानी के सैलाब आएंगे, तो उसके बाद जब आप आसमान पर वो कौसे कज़ा को देखेंगे, ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, तो फिर आप ये समझ लें कि आज से बाद जो बारिशें हैं वो रुक गई हैं। तो ये एक निशान है खुदा ने हमें दिया है। तो कौसे कज़ा हमारा टॉपिक नहीं है। कौसे कज़ा के अंदर जो रंग हैं, जब हम उसको देखते हैं ना, उसके अंदर मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। वो जी कमान बनी थी ना समान के, उनके मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। तो कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी भी एक कौसे कज़ा है, ज़िंदगी भी एक कैनवस है, उसके अंदर रंग हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे रंग हैं, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी के अंदर जो रंग है वो गाने बजाने का रंग है, खुदा की हम तो साजिश करने का रंग है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो आप रंग ले रहे हैं वो है आप लोगों के सामने खुदा की अमनादी करना। कोई खिदमत करता है, कोई एल्डर का काम कर रहा है, कोई चर्च के अंदर साथ बजा रहा है। फिर इसके अलावा जो चर्च के अलावा जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं, कोई नशे का रंग, कोई नशे का रंग लेके फिरता है, कोई और तरह के रंग नहीं। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई रंग नहीं, लेकिन जो रंग मसीह हमें देना चाहता है वो ईमानदारी का रंग है। वो ऐसा रंग है जिसके अंदर जब वो रंग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो खुदा के कलाम के रंग हैं, जो परहेजगारी का रंग है, जो झूठ ना बोलने का रंग है। जब हम हमारी ज़िंदगी में झूठ हैं, तरह तरह के फरेब हैं, तो फिर वो रंग अच्छे नहीं लगेंगे। खुदा वो रंग चाहता है जो ईमानदारी के रंग है, जो परहेजगारी के रंग हैं। जब अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाना है, उस कैनवस को खूबसूरत करना है, तो फिर खुदा के कलाम की बातों का अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना पड़ेगा, फिर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि बपतिस्मे के बाद कोई नया रंग नजर आना चाहिए ना। कौन सा रंग नजर आना चाहिए? परहेजगारी का रंग नहीं। ऐसा कलाम नहीं लिखा, यह काम असं नहीं करना। अगर लिबास से आप नजर आए अच्छे मसीह नजर आए, आपकी गुफ्तगू से अच्छे मसीह नजर आए, आपकी बातों से लोग बरकत पाएं, आपकी गुफ्तगू से लोग ये जान जाएं कि ये शख्स मसीही है, ये बहन मसीही है। आपके लिबास से, आपके किरदार से पता चले। अपने किरदार को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुदा के साथ कमिटमेंट की है। तौबा का मतलब यही है कि खुदा के साथ नहीं कमिटमेंट करना। फिर आप लिबास से लेकर खाने पीने तक, पहनने ओढ़ने तक, ज़िंदगी की जितनी भी मोमेंट है, हमारी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, उन कामों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना पड़ेगा। फिर ये है बपतिस्मा में, ये है नई ज़िंदगी। और पुरानी इंसानियत को तर्क करना पड़ेगा, पुराने लिबास को उतारना पड़ेगा। ये कमरा है ना, तो कुछ दिन पहले हमने कमरा ये वही है, वो पहला कच्चियाँ इतना नजर आती थी ना, कच्चियाँ की हैं, तो जब इसके ऊपर रंग आ जाएगा ये और खूबसूरत हो जाएगा। मकान तो वही है ना पुराना, जो असी खाली इटा नहीं है, सिरमट त्रेड़ा नजर आती है, बदल देता है। इसके ऊपर जब आप कलर करेंगे ये और खूबसूरत हो जाएगा। तो जूँ ही फिर इसके अंदर डेकोरेशन करेंगे, पर्दे लग जाएंगे, खिड़कियाँ लग जाएंगी, एसी लग जाएगा, तो खूबसूरती बढ़ती जाएगी। इस तरह ज़िंदगी को भी हमने खूबसूरत बनाना है, अच्छे कामों से हमने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। फिर आपकी जो कैनवस है, आपकी जो ज़िंदगी की जो धनक है, जो कौसे कज़ा है, खूबसूरत नजर आएगी। जैसे हम बड़े बड़े खादमों को देखते हैं ना, मैं एक घराने के अंदर गया, उसने अनवर फजल की और उसकी बीवी की और उसकी पूरी फैमिली की घर में तस्वीरें लगाई। मैंने कहा क्या बात है, आपने गाँव में गया था, तो कहते जी असी इन्हों की बदौलत बड़ी बरकत पाई ना, लोगों की इन्हों की वजह साढ़े घर चैनल आता है, इन्हों का एज टी वी आता है,
اور اسی ویخنے کہ بڑے موجزات ہوندے نے, بڑے بابرکت لوگ نے, اس لیے سے انہیں تصویریں اپنے گھر چ رکھتے ہیں.